Hello, good morning. Good morning to all. Okay, so my name is Krish. Okay, सबको good morning, very good morning. My name is Krishan Kant, PGTCS from Kendra Vidyalaya, Badayong. Okay, so now we start our class. So this is class 11th. Okay, another subject is computer science with Python. Okay, so uh, now start the class. So in today's class, we are going to learn how to run a simple program in Python. यानी कि पाइथन में हम कैसे अपना एक सिंपल सा प्रोग्राम जो रन करेंगे वो कैसे करेंगे, हाउ वुड यू डू. ओके, सो एक्चुअली पाइथन is a language, programming language. Python just converts the manual tasks in computer applications. So we create the software in Python to accomplish a task. Okay, so let's start. Okay, this is Python software application IDLE. Okay, now suppose Vansika, one question. So Vansika, tell me one question. Suppose you have to add two numbers, then how would you add two numbers? कैसे ऐड करोगे दो नंबरों को? Simple, manually, not in Python. Vansika, can you hear? कैसे ऐड करेंगे आप दो नंबर? आपको मैंने दो नंबर दे दिए, तो कैसे ऐड करेंगे? नहीं, not in Python, simply. Suppose in term of the mathematics, how would you add two numbers? In mathematics, कैसे ऐड करोगे? नहीं, your voice is not clear. Your voice is not clear. Okay, please. Next, Latika. Latika, can you tell me how would you add two numbers in mathematics? कैसे ऐड करोगे दो नंबरों को? क्या करोगे अगर मैथमेटिक्स में कोई ऐड करने के लिए बोलता है आपको? कैसे करेंगे आप? Latika, can you hear me? Okay. दिव्यांश, अगर आपको दो नंबर दिए जाएं इन मैथमेटिक्स, देन हाउ वुड यू ऐड टू नंबर्स? 2 plus 2 4. One another way, x is equal to 2, y is equal to 2, then you can take x plus y, okay, in any variable, say z. Okay, so this is a very simple example or a simple calculation of addition of two numbers. Okay, कि हम कैसे दो नंबरों को ऐड कर सकते हैं in mathematics. So this is in case of the mathematics, but what happens, suppose you want this in Python. Okay, so Python just gives you the automation. Just you enter two numbers and you get the addition automatically. Okay, so I am just going to explain how would you add two numbers in Python. So first of all, just open your Python software. Okay, now just go in file and save or save as your application. Okay, if you do the save as, then give the name of your program here. Okay, give the name of the program here. Suppose I am giving the name of the program addition of two numbers. In this way you can give any name.
आपके प्रोग्राम जो भी बना रहे हो, जैसे बाद में आप देखना चाहते हो तो सेव करके रखोगे कि नहीं रखोगे, ठीक है नहीं। तो ऐसे मैंने इसको सेव कर दिया, ओके ये सेव हो गया। तो अब देखिए पाइथन में आपके सामने ये खुला हुआ है, यहाँ पे आपका पाइथन का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। तो यहाँ पर क्या करोगे, देखिए यहाँ पे जैसा कि मुझे 2 नंबर ऐड करने हैं, तो कैसे करूंगा, सिंपल x, एक वेरिएबल ले लिया x इज इक्वल टू 10, सपोज आई टेक 10, ओके। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 20, suppose I take the value of y as 20. Next, this is a variable to store the result of x plus y. Okay. So now देखो ये है मैथमेटिकल कैलकुलेशन. In this way you can calculate the addition of two numbers. Okay. But in Python, suppose you want to print the result, what the result comes. तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक प्रिंट फंक्शन. प्रिंट का कैसे लिखते हैं, प्रिंट लिखेंगे सिंपल, और आपको क्या करना है, जेड को प्रिंट करना है. क्या करना है, जेड को प्रिंट करना है. ओके, ये जेड हमारा प्रिंट हो गया. प्रिंट का मतलब क्या होता है, प्रिंट का मतलब ये होता है जस्ट टू डिस्प्ले योर आउटपुट ऑन द स्क्रीन so that you can see what the output is coming out. Okay, so print is a Python function और कीवर्ड. ये Python का एक फंक्शन होता है जिसका काम स्क्रीन पर प्रिंट करना होता है. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए जी. ये यस यस टेल मी. Yes. No, not for addition, for everything you want to print on the screen. जी दोबारा बोलना है, आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आई. हाँ ये लिखा है प्रिंट, ओके प्रिंट लिखा है मैंने. बिल्कुल बिल्कुल यू आर करेक्ट. अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए वंशिका, वंशिका यानी एक देखो बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल दूंगा मैं तुम्हें. देखो सपोज आपके पास एक बर्तन है, ठीक है, ठीक है क्या नहीं. अब इस बर्तन में आपने पानी डाला, ओके पानी भर दिया ये, ओके पानी भर दिया, यानी बर्तन का काम क्या है, जस्ट टू टेक सम वाटर, कंटेन सम वाटर. ओके तो ये आपने पानी डाला, ओके. अब जरा एक चीज देखिए, क्या ये बर्तन केवल पानी के लिए है, आप क्या इसमें, हाँ तो वही तो कह रहा हूं, क्या आप इसमें मिल्क नहीं डाल सकते, दूध नहीं डाल सकते क्या, कुछ भी डाल सकते हैं ना. तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो बर्तन है ये हमारा प्रिंट फंक्शन है. क्या है, प्रिंट. ओके, और ये जो आ रहा है, ये मिल्क जो डाला है ये हमारा जेड है. तो प्रिंट अपना क्या काम करता है, वो निर्भर करता है कि प्रिंट के अंदर जो भी पास करोगे, देखो यहां पर क्या पास कर रहे हो, जो भी पास कर रहे हो वो चीज जाके स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी. समझ गए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं. ओके चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम. किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम, I can explain. Okay, so this is the simple example how to print the addition of two numbers. Okay, I think everyone is clear here, so no doubt. So I should proceed further. Okay, तो मुझे आगे जाना चाहिए. तो अब ये देखिए हम इसको रन कैसे करते हैं प्रोग्राम के, because this is your first program, so I am going to explain each and every step. Okay, तो इसको रन कैसे करते हैं आप जरा देखिए. ये देखिए यहाँ पर आपको रन दिख रहा है, इधर ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ आपको रन दिख रहा है, इधर ये रन ऊपर मेन्यू बार में रन. कैन यू सी रन,
रन लिखा हुआ है। ओके, तो आप एक काम कीजिए, जस्ट गो टू द रन एंड क्लिक इट। ओके, जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यू कैन सी हियर द रन मॉड्यूल इज एन ऑप्शन हियर, रन मॉड्यूल। ओके, क्या है रन मॉड्यूल? तो रन मॉड्यूल को मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही रन मॉड्यूल को क्लिक करूंगा तो ये कहेगा सेव करने की, कहेगा अगर सेव है तो इट विल नॉट सेव, अगर आपने कुछ भी चेंज किया तो सेव करने कहेगा। ओके, आई क्लिक द ओके बटन। ओके, okay, so now you can see here, you can see here the output, you can see here the output. Okay, so the output is 30, this is the output. So who has calculated this output? आपने कैलकुलेट किया है? किसने कैलकुलेट किया है? ये पाइथन ने किया है ना। तो दिस इज ऑटोमेटिकली, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली, ठीक है कि नहीं? तो आपने एक मैनुअल प्रॉब्लम को एक ऑटोमेटिक प्रॉब्लम बना दी, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। सो व्हेनेवर you run this program, the Python will automatically give you the output. Suppose you change the value here 25, okay, then 11. Okay, so what should be the output? Can you guess? Okay, so run this program now. Okay, so you see here the output is 36. Okay, so this is very simple program of Python, just to add two numbers and get the output. Okay, any problem in this program? Any problem? No, na? Oh, okay, very nice, very nice. Okay, so now get ready. I am going to ask some questions from you. Suppose this is, I think, देखिए, okay, just कौन बना सकता है? लतिका या वंशिका, कौन बनाएगा प्रोग्राम? ओके ओके, कौन बनाएगा? वंशिका। ओके वंशिका, just share your screen, share your screen to everyone. Can you share? No problem. वंशिका, आवाज आ रही है मेरी? ओके, शेयर द स्क्रीन फ्रॉम द गूगल मीट. Any problem in sharing? Okay, maybe you can disconnect or rejoin the group. Yes, Latika. लतिका, आपके पास लैपटॉप है ना? लतिका, लतिका, कैन यू हियर मी? एनीवन? और किसी के पास है लैपटॉप? ओके लतिका, जस्ट शेयर द स्क्रीन. Latika, just share the screen, present your screen. Latika, present your screen. Latika, present your screen. Okay. Vanshika, can you hear me? Vanshika, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं या नहीं? वंशिका, अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो? हेलो, चलो मेरी आवाज तो आ रही होगी एटलीस्ट. ओके, सो लेट्स
her screen. Okay, Latika, very nice. Latika, can you hear me? Latika, your voice is not coming. Latika, okay. Just, Latika, can you hear me? Okay, Latika, just rejoin the group. Latika, rejoin the group. Latika, rejoin. Okay, just Vanshika. Hello, Vanshika. Vanshika, आप प्रेजेंट कर सकते हो क्या? Okay, anyone else? Okay, no problem. No problem, no problem. Okay, just tell me. Okay, tell me here. Suppose I want to subtract two numbers. So tell me the program, how would I do? Just you tell me I am doing. Okay. Just you tell me I am doing. हाँ, कोई भी बताइए. हाँ. Okay, so I'm okay. X is equal to 4. Y is equal to 3. अच्छा, और yes, x minus y. Okay, then next. Okay, print z. So this is the program of subtraction of two numbers. Okay, very nice, very nice. बहुत अच्छे. इसको रन कैसे करेंगे? Just run, go in the run option and run module. Okay. So to run F5. Okay, so you can press the F5 button and directly run the program just like this. देखो, now I am using the shortcut F5. I am pressing F5. Okay. So by using the F5, okay. So you can see the output, very correct output, very nice. So I think you can simply run a program. Okay. Yes, 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 yes. ये वाला, ये देखो ऊपर देखो, कुछ ऊपर देखो, आप कुछ लिखा हुआ है इसके, क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? इसको देखो, टेक्निकली हम कहते हैं पाइथन शेल. क्या कहते हैं? पाइथन लिखा हुआ है. ओके, नहीं, ये इधर से दिख रहा है ना पाइथन शेल, ये रहा. ठीक है, इसको हम कहते हैं आउटपुट स्क्रीन. क्या कहते हैं? आउटपुट स्क्रीन. तो यानी कि आउटपुट तुम्हारा अलग स्क्रीन में दिखाता है वो. ओके, तो ये क्या लिखी है? आउटपुट स्क्रीन. तो आई थिंक नो प्रॉब्लम. ओके, आउटपुट स्क्रीन अलग होती है और जहां पर प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं दैट इज डिफरेंट स्क्रीन. ओके, एनी प्रॉब्लम? दिव्या, okay, you can share now. Latika, चलो तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. आई थिंक इट्स ओवर नाउ बिकॉज यू नो वेल, है ना, तो क्लास इज एक्सीडिंग. So no problem, we will discuss in next class and will share the programs from your side in next class. Okay, but one or two assignment for you. Please note down the assignment. I will discuss these assignment in next class. Okay, okay, no problem. Okay, okay, no problem. Let it go. Just mute your mic, please. Mute your mic. Mute your mic, please.
Okay, just I note down some program assignment for you. First assignment is write down. You can write down. You can write down on a notepad also, no problem. If you have not a notebook, the program is division of two numbers. Write a program in Python for division of two numbers. Division of two numbers. ओके एक असाइनमेंट ये है. नेक्स्ट लिखिए राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन. राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन. देखो यहां लिख रहा हूं मैं. ओके राइट अ प्रोग्राम इन फॉर एडिशन. ओ सॉरी, फॉर two numbers. This is your second assignment, multiplication of two numbers. So multiplication of two numbers, I think you can do multiplication of two numbers. So you have to create these two programs. Okay, no problem. Okay, multiplication of numbers. One difficult program from my side. Okay, so that is program number 3. Find greatest of two numbers. कैसे फाइंड आउट करोगे दो नंबर का ग्रेटर देन? ओके, रिमेंबर दिस फॉर कंपेयरिंग ग्रेटर देन, दिस साइन इज फॉर लेस देन, दिस साइन इज लेस देन इक्वल टू, एंड दिस साइन इज greater than equal to. Okay, remember this thing. Okay, so this is I think a little bit difficult for you because you are the beginner, but no problem, you can try. Okay, and we'll discuss all these things later in the next class. So okay, so we finish our class here. Okay, thank you. Yes. हाँ, जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है उस पे करेंगे. ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ओके, गुड बाय, थैंक यू. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन मानसून. तो इंडियन मानसून जो है ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे, और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होता है. तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो इंडियन मानसून है वो कहाँ से, वो जो होता है उसका एरिया कहाँ से कहाँ होता है. भले ही हम उसको इंडियन मानसून बोलते हैं, लेकिन उसका जो एरिया होता है वो 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के बीच में होता है. मीन्स ये वर्ल्ड मैप है. ये जो है ये 0 डिग्री है, और ये जो है ये 20 डिग्री नॉर्थ, और ये 20 डिग्री साउथ. तो इस रीजन में मानसून का अफेक्ट होता है. और मानसून जो होता है ये स्टार्ट कब होता है? ऑलमोस्ट जो जब जून का महीना होता है, जब समर टाइम का एंड होता है, उस टाइम मानसून स्टार्ट होता है. और जो ऑटम सीजन होता है उस टाइम मानसून का रिट्रीट का टाइम होता है, उस टाइम मानसून वापस लौटता है. तो ये जो मानसून है ये स्टार्ट इसलिए होता है क्योंकि इसका इसका जो यहाँ एक फैक्टर बताया गया वो है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. क्योंकि जो लैंड होता है और जो वाटर होता है, दोनों का जो गर्म होने का जो प्रोसेस है, दोनों का हीट होने का जो प्रोसेस है, उसमें दोनों में अलग अलग होता है, वो डिफरेंट होता है.
जो लैंड सरफेस होता है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर। लेकिन जो वाटर है उसका नेचर होता है कि वो धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इस कारण क्या होता है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, तो इंडिया का जो लैंड सरफेस है वो, ये वाला जो सरफेस है वो तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंडा होता है। लेकिन जो वाटर सरफेस है, जो ओशनिक सरफेस है, वो धीरे से गर्म होता है और धीरे से ठंडा होता है। इस कारण क्या होता है कि ये जो लैंड सरफेस है इसको मैं रेड कलर से शो करता हूँ, तो ये जो एरिया होता है ये एरिया बहुत ही जल्दी हीट हो जाता है। समर टाइम में ये एरिया बहुत जल्दी हीट होता है, लेकिन वाटर की क्वालिटी होती है कि वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो लैंड सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वाटर सरफेस का टेम्परेचर कम होता है। तो लैंड सरफेस का जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसके कारण जो वहाँ का एयर होता है वो गर्म हो जाता है, वार्म एयर होता है और वो लाइट होकर वो ऊपर चला जाता है। तो इस कारण क्या होता है, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। हम्म, तो ये जो लैंड सरफेस का एरिया है, इस एरिया का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। और कम होने के कारण क्या है, और ओसेनिक सरफेस में जो वाटर या जो वाटर सरफेस है, ओसेनिक सरफेस है, उसका प्रेशर एज कम्पेयर टू लैंड हाई होता है। इसीलिए विंड का डायरेक्शन हमेशा हाई टू लो प्रेशर की ओर होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। इसीलिए जो विंड है वो वाटर सरफेस से किधर चलती है, लैंड सरफेस की तरफ, वाटर टू लैंड। और जब भी विंड वाटर टू लैंड की ओर मूव करेगी तो वहाँ एक फिनोमिना वो क्या करती है, अपने साथ जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर लेके जाती है। और मॉइस्चर लेके जाती है और जैसे ही वो लैंड सरफेस पे पहुँचती है वहाँ बहुत हैवी रेनफॉल कराती है। हाँ, जो सदर्न एरिया है, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो स्पेशली जो कोस्टल एरिया है, तो वहाँ बहुत हैवी रेनफॉल होता है। इसका पहला रीज़न तो वही है। दूसरा रीज़न एक ये भी है कि वहाँ वेस्टर्न घाट है, जो माउंटेन्स हैं, जो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो महाराष्ट्र और ये कर्नाटक और गोवा का जो एरिया है, और केरल वाला एरिया, तो वहाँ क्या है, वहाँ वेस्टर्न घाट है, इसीलिए वहाँ हैवी रेनफॉल होता है। फिर नेक्स्ट इसमें फिनोमिना है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, ITCZ। तो ये समर टाइम में होता है। इसे हिंदी में कहते हैं अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि हम लोग वापस फिर मैप में जाते हैं। हम्म, हाँ, तो समर में क्या होता है कि लैंड सरफेस में अभी भी क्या है, यहाँ लो प्रेशर होता है, लेकिन ड्यू टू सम फिनोमिना, कुछ रीजन के कारण क्या होता है, जो सबसे जो मोस्ट वाला जो प्रेशर वाला एरिया होता है वो शिफ्ट कर जाता है। तो ये वाला जो नॉर्दर्न जो प्लेन है, क्योंकि हम लोग इससे पहले इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में पढ़े थे कि सी से जब डिस्टेंस बढ़ता है तो क्लाइमेट भी जो होता है वो अफेक्ट होता है, क्योंकि जो एरिया सी के आसपास होता है वहाँ के टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। ल- लेकिन जो नॉर्दर्न प्लेन है, स्पेशली ये वाला एरिया, तो यहाँ क्या है, यहाँ टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। समर टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है और विंटर में बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो इस कारण क्या होता है, यहाँ यहाँ एक कन्वर्जेंस जोन क्रिएट होता है। हाई यहाँ लो प्रेशर कन्वर्जेंस जोन क्रिएट होता है, और कुछ कुछ कारण या कुछ फिनोमिना कारण अभी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो जो कन्वर्जेंस जो होता है वो
और नॉर्दर्न में और चला जाता है और ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाता है, तो उसे ही कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हाई प्रेशर एरिया ऑन द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। तो वो जो मेडागास्कर वाला जो एरिया है, वो मीन्स मेडागास्कर जो है वो साउथ अफ्रीका के नीचे है, तो वहाँ एक हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है। तो उधर से भी अब मेडागास्कर में हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है, तो उधर से भी जो विंड होता है वो इंडिया की तरफ आता है, क्योंकि इंडिया में समर टाइम में क्या है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। हम्म। फिर एक और फिनोमिना है, वो है कि समर टाइम में जो तिब्बतन प्लेटू होता है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तिब्बतन प्लेटू जो है वो ये यहाँ है, तो यहाँ क्या होता है, समर टाइम में यहाँ बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। इस कारण इस एरिया में क्या है, बहुत ही लो प्रेशर जोन, यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, और ये भी इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, या जो इंडियन मानसून है उसको अफेक्ट करता है। और फिर लास्ट में है द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयास एंड द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिसुला। तो विंटर टाइम में जैसे इंडिया में दो दो जेट स्ट्रीम होते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इंडिया में दो जेट स्ट्रीम होते हैं। एक जो नॉर्दर्न इंडिया में होता है, जो हो, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होता है, और जो इंडिया के साउथ में होता है जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होता है। तो विंटर टाइम में क्या होता है कि ये जो ट्रॉपिकल, जो सब ट्रॉपिकल होता है, जो जैसे यहाँ एक जेट स्ट्रीम जा रहा है, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। तो ये जो जेट स्ट्रीम है ये ठंडियों में, मीन्स जब विंटर सीजन होता है तब इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में आता है, और जैसे ही समर टाइम आता है ये क्या करता है, अपना डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर लेता है। ये फिर ये हि, हाँ, ये हिमालय के साउथ में, ये मीन्स हिमालय की तरफ चला जाता है। तो विंटर में भी ये क्या है, ये जेट स्ट्रीम रेनफॉल कराता है। और विंटर में रेनफॉल किसके कारण होता है, क्योंकि ये जो जेट स्ट्रीम है ये आती है जो मेडिटेरियन सी वाला जो एरिया है, मेडिटेरियन सी और कैस्पियन सी से होते हुए आती हैं। इसीलिए विंटर में स्पेशली जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जो पंजाब हरियाणा दिल्ली का जो एरिया है और कुछ पार्ट वेस्टर्न यूपी का, तो वहाँ विंटर टाइम में बहुत ही बारिश होती है, ठीक ठाक बारिश हो जाती है। तो इस कारण वहाँ जो फसल होती है विंटर में भी काफ़ी अच्छी होती है। फिर दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सदर्न ओसिलेशन और एल नीनो। तो मैं दोनों को एक साथ ही बताता हूँ, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सदर्न ओसिलेशन एंड एल नीनो। तो सदर्न ओसिलेशन मीन्स क्या होता है कि जो आईटीसी जो अभी बताया था ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो वो कई बार चेंज हो जाता है, और उस चेंज होने का रीज़न है सदर्न ओसिलेशन, दक्षिणी दोलन और एल नीनो। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एल नीनो को। तो ये जो पेरू एल नीनो जो होता है ये आता है पेरू वाले एरिया में। ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में ये कंट्री है पेरू, और इसी पेरू के पास ही एल नीनो जो आता है वही वो कंटिन्यू आता है। कंटिन्यू मीन्स हर 2-4 साल 3 साल के गैप में ये आता रहता है। और उसका रीज़न क्या है, यहाँ मोस्टली तो जैसे अगर हम ओशनिक करेंट्स को देखें तो बेसिकली दो ही टाइप के ओशनिक करेंट्स होते हैं, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। लेकिन और मोस्टली पेरू वाला जो एरिया है यहाँ हमेशा कोल्ड करंट ही फ्लो होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ वार्म करंट भी आ जाता है। अच्छा, कोल्ड करंट और वार्म करंट का जो जो डायरेक्शन होता है
जैसे ये है 0 डिग्री, मीन्स इक्वेटर है ये। इक्वेटर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि वहाँ साल भर थ्रू ईयर क्या होता है कि सन रेज बिल्कुल सीधी पड़ती है यहाँ, तो इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जो ओशनिक करंट्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं, वार्म एंड कोल्ड करंट। तो वो जो कोल्ड करंट होते हैं वो पोल में क्रिएट होते हैं और इक्वेटर की तरफ आते हैं। दोनों साइड नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्रिएट होते हैं और इक्वेटर की तरफ आते हैं। और वही जो वार्म करंट होते हैं ये इक्वेटर में क्रिएट होते हैं और पोल्स की तरफ जाते हैं। तो पेरू में भी जो करंट जो होता है वो पेरू में भी कोल्ड करंट होता है, ये वाला एरिया से होते हुए कोल्ड करंट आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ वार्म करंट भी क्रिएट हो जाता है। तो इस वार्म करंट के कारण क्या होता है, समर टाइम, और ये समर टाइम में मोस्टली समर टाइम या उसके आसपास ही क्रिएट होता है। हाँ ये उसी के टाइम ही क्रिएट होता है। और होता क्या है इसके कारण, यहाँ का जो प्रेशर है जो लो, क्योंकि अभी जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो रीजन है वहाँ लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। इस वाले रीजन में लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ वार्म करंट आने के कारण क्या होता है, अब यहाँ भी लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। और इस लो प्रेशर जोन के क्रिएट होने के कारण क्या होता है, ये सदर्न ओसिलेशन होता है। मीन्स सदर्न ओसिलेशन में क्या होता है, जो जो लो प्रेशर का एरिया है वो, जैसे अगर समर टाइम में क्या होता है, लो प्रेशर का एरिया ये वाला होता है जो, लेकिन एल नीनो के कारण क्या होता है, ये वाला एरिया हाई प्रेशर है, ये वाला एरिया हाई प्रेशर है। तो अगर एल नीनो नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है, तो विंड का डायरेक्शन किधर होगा, वो लैंड सरफेस से सी सरफेस की तरफ होगा। लेकिन अगर एल नीनो क्रिएट होता है, हाँ वही सी से सी टू लैंड हो जाएगा। लेकिन अगर एल नीनो क्रिएट होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये जो हाई प्रेशर वाला एरिया है ये कभी कभी शिफ्ट कर जाता है एल नीनो, मिस उधर जो लो प्रेशर एरिया है उधर भी ये चला जाता है। तो इस कारण क्या होता है कि कभी कभी एल नीनो के कारण मानसून जो है इंडिया में 2 सप्ताह लेट आता है और ऑलमोस्ट 2 वीक ये देर से आता है। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि इंडिया में जो खेती वगैरह, क्योंकि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो मोस्टली आज भी मैक्सिमम लोग मानसून पे बेस्ड है, वो इरिगेशन के लिए मानसून पे बेस्ड है। इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी फसल बर्बाद हो जाती है, इस एल नीनो कारण है। क्योंकि भले ही हम जानते हैं कि एल नीनो वहाँ आता है, लेकिन ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है कि कब एल नीनो आएगा। तो इसीलिए इंडिया में जो फार्मर जो एग्रीकल्चर के लिए मानसून पर बेस्ड होते हैं, मानसून पर डिपेंड होते हैं, तो उनके लिए यहाँ प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है।